Okay, I got it. Okay, thank you. I'll do other programs and I'll send you. They have done this one also. First one also. You can see if you want. Okay, let's start with the. Did you understand? Only Yes. are you still script sharing or no? Okay. No, I'm not trying. Okay, so I'll I'm start. talking slowly because it is the early morning and everyone is sleeping. So I'm talking slowly. Ah, no It's problem. 6:30 now. I can hear you well. Okay, now let me Yeah. start. They will with machine learning a little concept. We'll start the project. I feel. Along with that, you can explain me some part. If some is still left over, we can do it later on. We can later on the classes continue. Um, I was thinking, look, I can finish if you give me tomorrow 2 hour classes there, right? In that I can finish your whole Yes. project and I will make you understand little bit because if you don't know means you can't understand that much. But I can Yeah. try Yeah. mostly to make you understand. Yeah. Actually, I was telling this because at times I'm getting busy. Since I have told Fatima also that I'm expecting, so at times I'm not to pill or I need to go to a hospital. So I want to finish off with the project. Oh, okay, okay. No worries. First of all, congratulations. And yes, okay, Thank so you. we'll start with देखो प्रोजेक्ट तो हो जाएगा बट ये बात है ना कि प्रोजेक्ट में कुछ भी समझ नहीं आएगा आपको बिकॉज एक तो पाइथन अभी उतनी नहीं आती सेकेंड ऑफ ऑल प्रोजेक्ट का मतलब मैं कोशिश पूरी करूंगी कि आपको आ जाए ठीक है लेकिन आई डोंट नो कि पूरा आ पाएगा या नहीं बट लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट Okay. टॉपिक ऑफ मशीन लर्निंग एक एक करके चलेंगे ठीक है एंड जो आपके Yes. आपके उसमें कौन सा यूज हो रहा है आपके में रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम यूज हो रहा है वो मैं कल एक्सप्लेन करूंगी और फिर मैं कल आपको पूरा प्रोजेक्ट करके भी दिखा दूंगी ओके Okay. यस I wanted to submit it as soon as possible and so wind I up with think module by 2. So, tomorrow I will make you and give then you can submit yeah, and because after that I have module 3 also. I need to start module 3, which is more of medicine part. Some part is IT, which oh I think she will take or not. I don't know. Remember. so you Some mainly part is IT. so you have like in each module you have projects Each module ends with a project, and projects and an exam. Exams are over okay for okay module 2. For module 3, exam is there, which will I do afterwards. okay no issues so let me start with so machine learning mein first we are starting with supervised okay like supervised के algorithms we'll study okay um, Okay. so you know what supervised learning is supervised learning means that we give our machine first of all machine learning means teaching a computer how to learn patterns from data okay and Yes. now what supervised learning does just making you revise once we give input and output okay Okay. input plus output which is the label you have to be very clear with these basics so Okay. and our goal is to predict the output okay means with new data Okay. predict the output with new data Okay. output okay so there can be two types of output okay one is it is of two types basically supervised machine learning is of two types first one is regression okay I'll tell you what it is and second one is classification
सो व्हाट रिग्रेशन मीन्स, आउटपुट नंबर में होगा, नंबर के फॉर्म में होगा, मतलब प्रेडिक्ट नंबर्स। जैसे मे बी हाउस प्राइस प्रिडिक्शन का एग्जांपल मैंने आपको बताया था, तो उसमें जो है रिग्रेशन यूज करेंगे, क्योंकि उसका जो आउटपुट है वो नंबर में होगा, जैसे 123, ठीक है, मतलब एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल 123 रुपीज, 144 रुपीज, और लाइक मतलब आउटपुट जो कॉलम है वो हमारा नंबर्स, नंबर के फॉर्म में होगा। प्रेडिक्ट नंबर्स मीन्स आउटपुट इज नंबर्स, ओके। एंड क्लासिफिकेशन में क्या होता है, क्लासिफिकेशन में वो वाले डेटा, मतलब क्लासिफिकेशन हम जब यूज करेंगे जब हमें कोई और चीज प्रिंट करना है, लाइक कैटेगरीज, लाइक यस और नो, ठीक है। आउटपुट में अगर यस और नो देखना है आपके प्रोजेक्ट में, हमें लाइक क्लासिफिकेशन यूज करना है, बिकॉज उसमें यस और नो, मतलब उसमें वैसे कुछ और यूज हो रहा है, लेकिन उसमें जो आउटपुट है वो यस और नो के फॉर्म में है, कि इस बंदे को अल्जाइमर्स है या नहीं, ठीक है, तो वो यस और नो के फॉर्म में है। So output can be in yes or no form, or spam or not spam in case of email, okay? So spam or not spam. So जो क्लासिफिकेशन है उसमें हम क्या करते हैं, वी प्रिडिक्ट, मतलब आउटपुट जो होता है वो कैटेगरी के फॉर्म में होता है, दीज आर कैटेगरीज एंड दिस इज नंबर, ओके। डिड यू अंडरस्टैंड द Are एग्जाम्पल? you, are you sharing your screen? Oh my god, you cannot see my screen? Yeah, no, no. Oh shit, yeah, okay, I'm so sorry. मैं ये कह रही थी कि पहली बात तो सुपरवाइज लर्निंग, आई टोल्ड यू व्हाट इट इज। इट हैज टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज रिग्रेशन, ओके। रिग्रेशन में क्या होता है, रिग्रेशन में हम जो हमारा आउटपुट होता है वो नंबर के फॉर्म में आता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो हम हाउस प्राइस प्रिडिक्शन का मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, मतलब कि हाउस, मतलब अगर मुझे किसी घर की प्राइस प्रिडिक्ट करना है, तो मैं डेटा लूंगी और मैं जो है अपने मॉडल को मतलब पूरा सिखाऊंगी सारा डेटा कि क्या क्या, मतलब सारे फीचर्स दूंगी, कि नंबर ऑफ रूम्स एंड एवरीथिंग। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रिग्रेशन। इसमें एक एग्जांपल मैं बता रही हूँ, हाउस प्राइस प्रिडिक्शन, ठीक है। तो उसमें डेटा मैं दूंगी उसे कि मतलब ये सारा डेटा है, मैं उसे ऐसा डेटा दूंगी, ठीक है, लाइक कि ये हाउस की लोकेशन है, ठीक है, और लोकेशन फिर नंबर ऑफ रूम्स, ठीक है, और वो सिटी में है या लाइक विलेज है टाइप, सो ये सब चीजें दूंगी। और मैं आउटपुट भी दूंगी कि हाउस प्राइस, ठीक है, हाउस प्राइस भी दूंगी मैं उसे, ठीक है। ऐसे बहुत सारी रोज दूंगी मैं उसे, ठीक है, उसे पूरा सिखाऊंगी कि क्या मतलब ये सब सीख लेगा वो, कि हाउस प्राइसेस क्या क्या है, किस लोकेशन में कितना प्राइस, मतलब कितना मतलब किस लोकेशन में हाउस की प्राइस क्या क्या है, ठीक है, सब कुछ सीख लेगा वो। उसके बाद मैं उसे न्यू डेटा दूंगी, मतलब मैं उसे कोई नया घर दूंगी, समझो मैंने अपना ही घर दे दिया, पहले मैंने उसे पूरे शहर के घरों के बारे में पढ़ाया, मतलब बताया, और आउटपुट भी दिया, ठीक है, ये आउटपुट है, ये भी दूंगी मैं कि कितने कितने करोड़ का बिक रहा है, समझो 1 करोड़ दे दिया या 2 करोड़, ठीक है, ऐसे दूंगी मैं उसे आउटपुट भी। और फिर मैं उसे बोलूंगी कि कोई न्यू डेटा पे अपना मतलब प्रिडिक्शन करो, ठीक है, न्यू डेटा पे अपना प्रिडिक्शन करो। तो यहाँ जो प्रिडिक्शन होगा, हमें यही तो प्रिडिक्ट करना है, हाउस प्राइस न्यू डेटा पे, हाउस प्राइस ही तो प्रिडिक्ट करना है, न्यू डेटा मतलब जो न्यू मैं उसे डेटा दूंगी तो उस पे वो हाउस प्राइस ही तो प्रिडिक्ट करेगा। द हाउस प्राइस किस फॉर्म में होता है, नंबर के फॉर्म में होता है ना, मतलब नंबर है ना ये। तो हमारा आउटपुट दो तरीके से का हो सकता है, एक नंबर होता है और एक मतलब नॉर्मल कैटेगरीज होती हैं। तो जो नंबर वाला होता है उसके लिए हम यूज करते हैं रिग्रेशन, ठीक है। नंबर अगर हमें प्रेडिक्ट करना है अपने आउटपुट में तो हम यूज करेंगे रिग्रेशन। दूसरी चीज होती है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब है, मैं आपको बता चुकी हूँ, समझो ईमेल, ईमेल का मैंने आपको बताया था ना, उसका आउटपुट क्या था, उसका आउटपुट हम यही तो प्रेडिक्ट कर रहे थे कि स्पैम है या नॉट स्पैम, स्पैम और नॉट स्पैम, ठीक है, ये तो हम प्रेडिक्ट कर रहे थे उसमें। तो ये क्या है, ये कैटेगरीज हैं, ठीक है। तो मतलब अगर आपको आपको सोचना है कि आपको या तो रिग्रेशन लगाना है या तो क्लासिफिकेशन, मतलब रिग्रेशन के एल्गोरिदम्स होते हैं अलग और क्लासिफिकेशन के अलग एल्गोरिदम्स होते हैं। तो आपको ये देखना है कि आपका आउटपुट नंबर में आएगा या कैटेगरीज में आएगा, ठीक है, उस हिसाब से आप चूज करोगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर एक और एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल ले लूँ, जैसे आपका ये प्रोजेक्ट है, उसमें भी मैंने अभी बताया ना कि उसमें जो आपको प्रिडिक्ट करना है कि एक बंदे को अल्जाइमर है कि नहीं, ठीक है, अल्जाइमर का डिजीज जो है वो है कि नहीं, ठीक है। तो वो क्या प्रिडिक्ट करेगा, यस और नो ही तो प्रिडिक्ट करेगा। तो ये भी कैटेगरीज ही होती है, ठीक है, ये भी कैटेगरीज के फॉर्म में ही आता है, ठीक है। तो ये चीज होता है कि मतलब समझ में आ गया कि देखो, बिकॉज टू मतलब हमारे पास सुपरवाइज लर्निंग में एल्गोरिदम्स होते हैं, अभी मैं बताऊंगी एल्गोरिदम्स क्या होता है, ठीक है। तो वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है रिग्रेशन, रिग्रेशन एल्गोरिदम्स,
ठीक है, और एक होता है क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम्स। रिग्रेशन एल्गोरिदम्स हम जब यूज करते हैं जब हमें अपना आउटपुट नंबर न्यूमेरिकल फॉर्म में चाहिए होता है, जैसे हाउस प्राइस प्रिडिक्शन। क्लासिफिकेशन वाला हम जब यूज करते हैं जब हमें कैटेगरीज प्रिडिक्ट करनी होती हैं, जैसे ईमेल का स्पैम या नॉट स्पैम, ये कैटेगरी है। जैसे अल्जाइमर डिजीज में हमें यस और नो प्रिंट करना है कि बंदे को है डिजीज या नहीं है। ओके, डिड यू गेट इट और शुड आई रिपीट? I'm getting your point. या सो मैं फिर से बता देती हूँ एक बार। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एल्गोरिदम क्या होता है, ठीक है। एल्गोरिदम की लाइक बहुत ही सिंपल सी अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं और फिर मैं समझाऊंगी एल्गोरिदम क्या होता है। एल्गोरिदम का बेसिकली मतलब ये है कि इट्स जस्ट अ मेथड। ओके, इट्स जस्ट अ मेथड दैट द कंप्यूटर यूजेस टू लर्न पैटर्न्स फ्रॉम डेटा, ठीक है। क्योंकि देखो एल्गोरिदम मतलब जैसे समझो आपके घर में आप कोई खाना पका रहे हो, ठीक है। अब आप समझो आप कुछ खाना पका रहे हो उधर, ठीक है। अब आप जब खाना पका रहे हो तो आप जो है समझो आपके आपके हस्बैंड और बच्चे हैं, ठीक है, दो लोग हैं अलग अलग। समझो हस्बैंड है और बच्चे हैं, ठीक है। अब जो हस्बैंड है उनको स्पाइसी खाना है, तो ठीक है स्पाइसी खाना है, तो आप उनके लिए अलग रेसिपी से बनाओगे खाना। बच्चे हैं उनको स्पाइसी नहीं खाना, ठीक है, नो नॉट स्पाइसी, तो आप उनके लिए अलग रेसिपी से खाना बनाओगे। सेम वे हमारे मशीन लर्निंग में हमें अलग अलग टाइप के डेटा सेट्स दिए जाते हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े डेटा सेट्स होते हैं, ठीक है। तो हमें सबसे अच्छा एल्गोरिदम लगाना होता है, मतलब वी हैव सेम वे लाइक यू हैव मेनी रेसिपीज, वी हैव मेनी एल्गोरिदम्स और मेथड्स। ओके, मेथड्स या एल्गोरिदम्स कह लो, मतलब जिस तरीके से हम डेटा सेट से मतलब अपना डिजायर्ड आउटपुट निकलवा सकते हैं, ठीक है। मेन चीज तो हमें आउटपुट निकलवाना ही है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। तो हम उसमें अलग अलग मेथड्स लगा सकते हैं, ठीक है। डेटा पे मतलब डेटा कैसा उस उसके हिसाब से हम अलग अलग मेथड्स लगा सकते हैं, ठीक है। तो जो मतलब मेथड्स या एल्गोरिदम कह लें, तो जो एल्गोरिदम होते हैं वो सुपरवाइज मशीन लर्निंग में वो दो मेन टाइप के होते हैं। पहला होता है रिग्रेशन, ठीक है, और दूसरा होता है क्लासिफिकेशन। इसमें और भी टाइप्स हैं अंदर बट मेनली ये दो हैं। इसके अंदर मतलब ये जो है ब्रॉडर वो है एल्गोरिदम के, ये लाइक ये एल्गोरिदम का टाइप है, मतलब लाइक रिग्रेशन, ये रिग्रेशन कोई एल्गोरिदम नहीं है, रिग्रेशन के अंदर एल्गोरिदम है। उसका नाम सिंपल लीनियर रिग्रेशन है, ठीक है, जो हम आज पढ़ेंगे, सिंपल लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। ये रिग्रेशन बस कैटेगरी है। पहले हमें सबसे पहले समझे आपके पास कोई डेटा आया, ठीक है, और आपको इतना और उसमें आउटपुट भी दिया हुआ है, ठीक है, उसमें आउटपुट भी दिया हुआ है। तो आपको समझ आ जाएगा कि मुझे सुपरवाइज मशीन लर्निंग लगानी है, ठीक है। तो सुपरवाइज मशीन लर्निंग लगानी है, आपको इतना समझ आ गया। उसके बाद आप क्या चेक करोगे कि वो आउटपुट किस फॉर्म में है। अगर वो नंबर फॉर्म में हुआ तो आप क्या करोगे, आप रिग्रेशन लगाओगे। ओके, नंबर फॉर्म में हुआ तो आप रिग्रेशन लगाओगे, ठीक है। अगर आउटपुट जो आउटपुट है वो नंबर फॉर्म में, मैं लिख देती हूँ आउटपुट इन नंबर फॉर्म, ये न्यूमेरिकल फॉर्म कह लें। और अगर या तो आप वो देखोगे अगर हमारा आउटपुट जो है कैटेगोरिकल फॉर्म में, जैसे यस या नो, स्पैम या नॉट स्पैम, तो वो क्लासिफिकेशन में आएगा, ठीक है, आउटपुट इन कैटेगोरिकल फॉर्म। फिर आप मतलब पहले तो आपको डेटा सेट मिला, ठीक है, आपने पहले चूज करना है अनसुपरवाइज लगाओगे, सुपरवाइज लगाओगे या रीइंफोर्समेंट, ठीक है। मेनली अनसुपरवाइज या सुपरवाइज में से ही हम कुछ लगाते हैं। तो आपको इतना समझ आ गया, आपने सुपरवाइज लगाया क्यों, क्योंकि आउटपुट दिया हुआ था, अनसुपरवाइज में आउटपुट नहीं दिया जाता ना। तो फिर हमने इतना समझ आ गया। उसके बाद आपको एल्गोरिदम चूज करना होता है, अच्छा कि आप कौन सी तरीके से अपने मशीन को समझाओगे और उससे करवाओगे काम, ठीक है। तो इसमें दो मेन मेन जो दो तरीके होते हैं, ठीक है। एक होता है रिग्रेशन, वो हम कब यूज करते हैं जब आउटपुट हमारा नंबर फॉर्म में चाहिए होता है। दूसरा होता है क्लासिफिकेशन, वो हम कब यूज करते हैं, वो हम जब यूज करते हैं जब हमारा आउटपुट जो कैटेगोरिकल फॉर्म में होता है। अब रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन में काफी एल्गोरिदम्स होते हैं, हम एक एक करके पढ़ेंगे। अभी आज हम रिग्रेशन में पहला
पहला वाला पढ़ेंगे जिसका नाम होता है सिंपल लीनियर रिग्रेशन। पहले हम रिग्रेशन के सारे एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे, उसके बाद क्लासिफिकेशन पे आएंगे, ठीक है। और एल्गोरिदम काम कैसे करता है वो भी मैं बता देती हूँ। एन एम एल एल्गोरिदम मतलब होता क्या है, आप मतलब जैसे आपने समझो, आपको एक्सेल शीट में डेटा सेट दिया हुआ है ना, तो आप उससे उससे मतलब कैसे करोगे, मतलब आपके प्रोजेक्ट में भी अगर आप मतलब एल्गोरिदम तो लगती सब में एल्गोरिदम लगने, एक ना एक एल्गोरिदम आपको चूज करके लगाना पड़ता है। कभी कभी आप क्या करते हो, आप ना दो तीन एल्गोरिदम लगा के देखते हो कौन सा अच्छा वर्क कर रहा है, किससे हमारा आंसर ज्यादा अच्छा आ रहा है, एक्यूरेसी किससे ज्यादा अच्छी आ रही है, फिर हम वो वाला चूज कर लेते हैं। वैसे तो आपके प्रोजेक्ट में बताया भी गया है कि आपको रैंडम फॉरेस्ट यूज करना है, आपके प्रोजेक्ट में रैंडम फॉरेस्ट यूज करना है, ठीक है। वो हम पढ़ेंगे बाद में, अभी इस पे फोकस करते हैं, वो भी काफी आसान है, ठीक है। तो एमएल एल्गोरिथम सबसे पहले करता क्या है, इनपुट डेटा लेगा, टेक्स इनपुट डेटा, ठीक है। इनपुट डेटा मतलब बेसिकली एल्गोरिदम इज लाइक कोड, ठीक है। मतलब एल्गोरिदम क्या होता है, वो कोड होता है बस बेसिकली। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते ना कि आप अपने कंप्यूटर के में गए, आपने गूगल को लैब खोला, ठीक है, आपने गूगल को लैब खोला, आपने अपनी एक्सेल फाइल इनपुट करी, बस हो गया, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, आपको कुछ ना कुछ कोड लिखना पड़ेगा। तो वो कोड को ही हम एल्गोरिदम बोलते हैं, क्योंकि कोड अलग अलग तरीके के लिखते हैं डिपेंडिंग ऑन द डेटा जो हमें इनपुट मिला है, ठीक है। आपको कौन सा एल्गोरिदम यूज करना है, बहुत तरीके, बहुत मेथड्स होते हैं, ठीक है। समझो डेटा हमारा कोई डिश है, ठीक है, डेटा हम खाना बना रहे हैं, तो डेटा समझो मेरी डिश का नाम है। अब मुझे डेटा को अगर बनाना है, पकाना है, तो मैं बहुत सारे रेसिपीज यूज कर सकती हूँ। सेम वे एल्गोरिदम होता है, एल्गोरिदम मतलब बहुत सारे मेथड्स यूज कर सकती हूँ, डिपेंडिंग ऑन मुझे आउटपुट क्या चाहिए उस हिसाब से मैं यूज करूंगी, ठीक है। खाना भी तो हम ऐसे ही बनाते हैं ना, कि ये देखते हैं कि घर के लिए बना रहे हैं, दावत के लिए बना रहे हैं, बहुत चीजें होती है ना, उस हिसाब से हम बनाते हैं कितना अच्छा बनना है। तो हम बहुत सोच समझ के रेसिपी चूज करते हैं। मे बी इफ यू हैव अ लॉट ऑफ रेसिपीज, इफ यू आर सर्चिंग ऑन यूट्यूब फॉर अ लॉट ऑफ रेसिपीज, सो यू विल टेक द वन जो आपके मतलब आपको जो आउटपुट चाहिए, मतलब जो आपका खाना बन के तैयार होगा, आप पहले वो देखोगे ना कैसा बन रहा है, ये कैसा बना रही है और कैसा बन के तैयार हुआ, कैसा दिख रहा है, फिर आप वो रेसिपी चूज करोगे ना। सेम वे में एल्गोरिदम हम इसी बेसिस पे चूज करते हैं कि हमें आउटपुट क्या चाहिए, हमारा डेटा कैसा है, इन चीजों पे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये एल्गोरिदम जो होता है वो डेटा इनपुट लेता है, वो पैटर्न्स के लिए देखता है, ठीक है, लुक्स फॉर पैटर्न्स, क्योंकि हमें पैटर्न्स ही तो पता लगाने होते हैं सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, लर्न्स द पैटर्न्स, पैटर्न्स को पढ़ेगा, याद करेगा, पैटर्न्स को याद करेगा तभी तो जो है नए डेटा पे काम कर पाएगा। पैटर्न याद कर लिए ठीक है, उसके बाद जो है उस पैटर्न्स को यूज करते हैं टू प्रिडिक्ट न्यू थिंग्स। ओके, डिड यू अंडरस्टैंड? इफ यू डिडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग जस्ट लेट मी नो, और या मैं एक बार रिवाइज करवा दूं। Yeah. डू यू वांट मी टू Today जस्ट and रिपीट today. एनीथिंग? No, no, no. ओके ओके। सो अब हम एल्गोरिदम अब समझ लिया क्या होता है, अब हम अपने पहले एल्गोरिदम मूव करेंगे। आई हमारा पहला एल्गोरिदम है, वैसे रिग्रेशन में मतलब मैंने आपको पहले पढ़ाया था, दो दो तरीके होते हैं, एक होता है रिग्रेशन और एक होता है क्लासिफिकेशन। मैं बता दूं इनमें कौन कौन से एल्गोरिदम्स होते हैं और उनके क्या क्या नाम है। पहला होता है इसमें सिंपल लीनियर रिग्रेशन, सिंपल लीनियर रिग्रेशन। दूसरा होता है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। ज्यादा कोई इसमें फर्क नहीं, सिंपल लीनियर रिग्रेशन और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में पढ़ाऊंगी। क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम्स में आते हैं, पहला लॉजिस्टिक रिग्रेशन। इसके नाम में देखो ये है क्लासिफिकेशन का पार्ट, ठीक है, लेकिन इसके नाम में है लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लेकिन ये कैटेगोरिकल आउटपुट के लिए यूज होता है, तो कंफ्यूज मत होना। ये वाला किसके लिए यूज होते हैं, ये वाले दीज आर यूज फॉर एक सेकेंड, सो these are used for numerical output, and classification is used for categorical output। तो इसमें पहला होता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन, दूसरा है केएनएन, ठीक है, तीसरा है डिसीजन ट्रीज। और भी होंगे, ये मेन टाइप्स वाले हैं तो मैं नहीं बता रही हूँ, वैसे यही है आज
ये मेन वाले हैं, ठीक है। तो इसमें हम आज पढ़ेंगे सिंपल लीनियर रिग्रेशन, फिर पढ़ेंगे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, फिर उसका कोड देखेंगे, कोड, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे क्लासिफिकेशन पे, मतलब मैं बता रही हूँ वर्क फ्लो आगे का। फिर हम पढ़ेंगे लॉजिस्टिक, केएनएन, डिसीजन ट्रीज, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद सिंपल लीनियर रिग्रेशन। जस्ट अ सेकेंड, या। सो अब सिंपल लीनियर रिग्रेशन में होता क्या है, आई टेल यू। ओके, सिंपल, ये थोड़ा घर जाके आपको रिवाइज भी करना होगा, बिकॉज मतलब कॉन्सेप्ट तो आपको समझ आ जाएंगे मशीन लर्निंग के। आई डोंट थिंक इट्स वेरी वेरी हार्ड, बट आप भूल ना जाए। ओके, सबसे पहले रिग्रेशन क्या होता है, ठीक है। इसमें रिग्रेशन जो वर्ड यूज हो रहा है वो क्या होता है, ठीक है। रिग्रेशन इज अ, मतलब रिग्रेशन, मैंने अभी बताया कि हम आउटपुट में नंबर प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो वही होता है। तो मैं रिग्रेशन की डेफिनेशन लिख देती हूँ। रिग्रेशन होता क्या है? रिग्रेशन का मतलब होता है इट इज अ वे टू प्रिडिक्ट नंबर्स एज आउटपुट, ठीक है, एज आउटपुट फ्रॉम सम इंफॉर्मेशन, फ्रॉम सम गिवन इंफॉर्मेशन। मतलब जो इनपुट हम दे रहे हैं, जो कॉलम्स हम और डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हमारी गिवन इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। और ये जो होता है, ये रिग्रेशन जो होता है, ये कंटिन्यूस वैल्यू होती है, क्योंकि नंबर्स आपके कंटिन्यूस होते हैं ना। मतलब समझो 123 आया, 133 आया, 143 आया, तो ये कंटिन्यूस है। अनलाइक येस और नो, जैसे क्लासिफिकेशन में येस नो, ठीक है, दीज आर नॉट कंटिन्यूस, दीज आर कंटिन्यूस, ठीक है, वैल्यूज। सो इसमें कंटिन्यूस वैल्यूज यूज होती है। ओके, सो रिग्रेशन वही होता है, जैसे एग्जाम्पल, यू वांट टू प्रिडिक्ट प्राइस ऑफ अ स्मॉल केक, ठीक है, केक है ये, इसका प्राइस आपको प्रिडिक्ट करना है, ठीक है। तो आपको इसका प्राइस प्रिडिक्ट करना है, मतलब आप क्या यूज करोगे, आप रिग्रेशन यूज करोगे, बिकॉज रिग्रेशन में क्या होता है, हम जो है आउटपुट जब हमें चाहिए होता है नंबर के फॉर्म में, जैसे मोस्टली प्राइस ही प्रिडिक्ट करते हैं हम, हाउस प्राइस ऐसा कुछ, तो हम उसमें रिग्रेशन यूज करते हैं, ठीक है, हमेशा। तो हम क्या करेंगे, अब मतलब अब आपको केक का प्राइस जानना है, तो आप क्या, मतलब आपको पता क्या होना चाहिए, इनपुट्स। दो चीजें होती हैं डेटा में, ठीक है, हमेशा हमें दो चीजें दी जाती हैं, इनपुट और आउटपुट। सुपरवाइज लर्निंग में, सुपरवाइज लर्निंग की बात करें तो उसमें इनपुट्स दिए जाते हैं, जैसे केक का वेट दिया होगा, ठीक है, या केक का फ्लेवर दिया होगा, बिकॉज वेनिला फ्लेवर सस्ते आते हैं, अगर आपने देखा हो, चॉकलेट फ्लेवर थोड़े महंगे होते हैं। आउटपुट में आपको प्राइस दिया होगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आपको प्राइस दिया होगा। समझो ये वाला केक, समझो पहला केक है, इसका जो है वेट जो है समझो 1 kg है, और इसका फ्लेवर वेनिला है, तो इसका प्राइस समझो 500 रुपीज। फिर सेकंड आता है, 2 kg का केक है, और वो है चॉकलेट का, तो वो डेफिनेटली काफी महंगा होगा, क्योंकि वेट भी ज्यादा है। चलो 1 kg मान लो अगर वेट, तब भी चॉकलेट जो वेनिला से महंगा होता है, तो वो 800 रुपीज हो जाएगा। सो ऐसे डेटा, मतलब समझो ये डेटा, ऐसे ही डेटा जो है हमारे कंप्यूटर को हम देते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ अ फाइल या एक्सेल शीट, जो भी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं, अब डेटा तो हमने दे दिया, अब हम सोचते हैं कि हम कौन सा एल्गोरिदम लगाएं। तो हम देखते हैं हमारे डेटा को, हम देखते हैं कि आउटपुट में देखो नंबर न्यूमेरिकल डेटा है, इसका मतलब यहाँ रिग्रेशन लगेगा, ठीक है। इतना समझ आ गया, रिग्रेशन लगेगा। अब रिग्रेशन में भी मैंने आपको बताया कि दो तरीके के वो होते हैं, देखिए, मैंने आपको बताया दो तरीके के होते हैं, एक होता है सिंपल लीनियर रिग्रेशन, एक होता है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। तो मैं आपको बता दूं, सिंपल लीनियर रिग्रेशन कब यूज होता है पता है? सिंपल लीनियर रिग्रेशन जब यूज होता है जब आपके पास एक इनपुट फीचर हो। एक इनपुट फीचर मतलब सिर्फ एक कॉलम हो इनपुट का, सिर्फ एक, ठीक है। जैसे सिर्फ ये वेट वाला दिया होता और उससे डायरेक्टली आप आउटपुट प्रिडिक्ट कर रहे थे, ये ना दिया होता, तो ये हो जाता सिंपल लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। मतलब सिंपल लीनियर रिग्रेशन ऐसे जब हम लगा सकते हैं जब आपके पास सिर्फ एक इनपुट कॉलम हो और एक आउटपुट कॉलम हो, ठीक है। आउटपुट तो एक ही होता है, लेकिन इनपुट तो हमारे काफी सारे होते हैं ना। तो ये अगर ऐसा डेटा दिया जाता आपको कि एक इनपुट और एक आउटपुट, सो वी वुड यूज सिंपल लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है इसमें नाम में ही सिंपल है, मतलब इसमें एक इनपुट है, ठीक है, एक इनपुट दिया जाता है बस। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है, ऑन द अदर हैंड,
उसमें जो है मल्टीपल इनपुट्स दिए जाते हैं। जैसे मैंने अभी दो कॉलम दिए थे, वेट और प्राइस, तो वो मल्टीपल हो गए, मल्टीपल इनपुट्स हो गए ना। तो ये फर्क है सिंपल लीनियर रिग्रेशन में और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में। लेकिन अब हम डिटेल में जानेंगे सिंपल लीनियर रिग्रेशन। चलो उसको एक ही, मतलब ये एक ही इनपुट पे काम करता है। अभी हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन का ही देखेंगे डिटेल में। ओके, सो हम क्या करते हैं, हमें क्या करना होता है सिंपल लीनियर रिग्रेशन में बेसिकली, जैसे सिंपल, होता क्या है सिंपल लीनियर रिग्रेशन में, जो हमें डेटा दिया होता है वो हम ऐसे प्लॉट करते हैं, ठीक है। आपने ग्राफ पढ़े हैं क्या उसमें, मैथ्स में, स्कूल में, एक्स और वाई के फॉर्म में? Yes. हाँ, तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन में वही होता है। एक मिनट। तो बेसिकली सिंपल लीनियर रिग्रेशन में ये होता है कि जो हमें डेटा दिया जाता है, ठीक है, उसे हम प्लॉट करते हैं इन द ग्राफ। समझे, ऐसे है वो डेटा, ऐसे डेटा पॉइंट्स है हमारे, हम उन्हें दे देते हैं, ठीक है। समझे, ऐसे मतलब आप जब प्लॉट करवाएंगी चैट, जैसे आपने या तो खुद ग्राफ बनाया, ठीक है, या आप कहीं से प्लॉट करवाएंगी। समझे, यहाँ दे रखा है फॉर एग्जांपल, अगर हम रिग्रेशन की बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ बोल रही हूँ क्या हो सकता है, हाउस प्राइस प्रेडिक्शन। यहाँ मैं, क्योंकि देखे ये इनपुट वाला साइड होगा, ठीक है। यहाँ इनपुट का एक फीचर लिखेंगे और ये आउटपुट वाला साइड होगा। अभी मैं आपको समझाती हूँ, क्योंकि अगर आपको ग्राफ समझ में ना आ रहा हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आई वुड से, यहाँ जैसे मैंने अभी वो वाला बोला ना, केक का समझो वेट ले रही हूँ, ठीक है, वेट यहाँ, और यहाँ मैं प्राइस प्रेडिक्ट कर रही हूँ उसका, ठीक है। तो मैं पहले आपको बता दूं, आपका डेटा इस फॉर्म में होना चाहिए। सबसे पहले आपका डेटा में, सिंस इट इज सिंपल लीनियर रिग्रेशन, एक इनपुट होना चाहिए और आउटपुट तो एक ही होता है, ठीक है। ऐसा दिया जाएगा सिंपल लीनियर रिग्रेशन। तभी तो उसके नाम में सिंपल है, बिकॉज ये आसान है, ठीक है। इनपुट ऐसे दिया, इनपुट एक दिया था, तो इनपुट में समझो मैं वेट दे रही हूँ, वेट, ठीक है। तो यहाँ केक का वेट है 1 किलो, आउटपुट 500 रुपीज। केक का वेट है 2 किलो, आउटपुट 600 रुपीज या 1600 रुपीज, ठीक है। 3.5 kg है, तो 3000 रुपीज। तो ऐसे करके करके आपको डेटा दिया जाएगा। आप इस डेटा को फिर क्या करोगे, इसमें प्लॉट करोगे, ठीक है। जब आप ग्राफ में प्लॉट करते हो तो एक्स पे आप लोगे केक का वेट और वाई पे आप लोगे प्राइस, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन का जो एल्गोरिदम होता है, मतलब ये मैं आपको बता रही हूँ, हम आपको जब आप कोड लिखोगे ना, पहली बात तो जब आप मशीन लर्निंग का कोई प्रोजेक्ट बनाओगे, आपको ये सब, ये जो मैं समझा रही हूँ, ये सब चीजें नहीं दिखेंगी, ये सब चीजें कंप्यूटर कर रहा होता है। ये मैं आपको सिखा रही हूँ एल्गोरिदम चलता कैसे है अंदर अंदर, ठीक है। आपको ये दिखेगा नहीं कहीं, ठीक है, मतलब आपको कोड में नहीं दिखेगा ये, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन आउटपुट कैसे निकालता है, और ये करता कैसे, चलता कैसे, काम कैसे करता है, क्या क्या फॉर्मूले यूज होते हैं, वो सब पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन में सबसे पहले हमारा डेटा होता है, ठीक है, एक इनपुट कॉलम एक आउटपुट कॉलम, और स्ट्रिक्टली सिर्फ एक इनपुट कॉलम होना चाहिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसे जो है प्लॉट कर देते हैं एक्स और वाई के फॉर्म में। एक तरफ हम इनपुट ले लेते हैं और एक वाई के तरफ हम आउटपुट ले लेते हैं, जिस प्राइस। उसके बाद क्या करता है, अब सिंपल लीनियर रिग्रेशन का काम आता है। सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या करता है, वो बेसिकली एक लाइन प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है। इट फाइंड्स द बेस्ट स्ट्रेट फिट लाइन, ठीक है, मतलब वो ऐसी कोई लाइन प्रिडिक्ट, सॉरी गलत बन गई, वन सेकेंड, वो ऐसी कोई लाइन प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता है जिससे सारे, मतलब जो भी ये डॉट्स बने ना, ये हमारा डेटा है, ये डेटा इससे पास हो, ठीक है। लाइक मतलब लेट मी जस्ट टेल यू वंस अगेन, ऐसे ये जो, ये हमारे पॉइंट्स है, मतलब हमारा डेटा है। मतलब मैं आपको अभी समझाती हूँ, ये जो पर्पल वाले हैं, जो पर्पल वाले डॉट्स हैं, वो क्या है, पर्पल डॉट्स हैं हमारा एक्चुअल डेटा। मतलब होता क्या है, जब हम मशीन लर्निंग में कोई
जैसे हम कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, समझो मुझे चार, फॉर एग्जाम्पल मुझे 4 रोज दी गई हैं, चौथी रो मैं बना देती हूँ 4 kg की, ठीक है, इसमें मैं 10,000 कर देती हूँ। अब आपको 4 रोज, वहां तो बहुत सारी होती है वैसे, तो मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ कि 4 रोज दी गई हैं, तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपने डेटा को सिर्फ मतलब मुझे 4 रोज में इनपुट और आउटपुट पता है, तो मैं क्या करूंगी, मैं अपने डेटा को मतलब सॉरी मशीन को सिखाना चाहती हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मैं उसे शुरू की 2 रोज दे दूंगी और कहूंगी इससे सीखो। वैसे असल में तो मतलब इसमें 4 ही रोज हैं, तो इसमें हम मतलब आधी रो, ये तो समझो तीन तीन रोज दे देती हूँ मैं से, ठीक है, 3 रोज दे दी मैंने, बिकॉज हम डेटा कैसे मतलब जो डेटा है हम वो मशीन को पता है कितना देते हैं, हम डेटा मतलब सिखाने के लिए, ठीक है, सिखाने के लिए हम उसे देंगे 70% डेटा, ठीक है, मतलब आपकी मर्जी, आप जितना भी दो, लाइक स्टैंडर्ड हम 70% देते हैं, ठीक है, 70 या 80 जितना भी आपका मन करे। तो मैंने समझो पहले की 3 रोज डेटा की दे दी इसे, कि तुम ये मतलब आप समझ लो, ठीक है, तभी तो पैटर्न सीखेगा कि इनपुट और आउटपुट समझेगा, ठीक है, मतलब तभी तो पैटर्न्स ढूंढ पाएगा। अब उसने 3 रोज में समझ लिया, तो 3 रोज हैं, ठीक है, 3 रोज ने समझ लो याद कर ली, उसको समझ में आ गया, ठीक है, समझो आप मशीन हो, आपको मैंने शुरू की 3 रोज दे दी, तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ना कि केक कितने का बिक रहा है, ठीक है, ये केक केक की बात हो रही है, केक की प्राइस की, तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं आपको शुरू की 3 रोज दूंगी या काफी सारा डेटा दूंगी, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि केक का प्राइस क्या है, क्या रेट चल रहा है मार्केट में, वो सब, ठीक है। अब मैंने इसे शुरू की 3 रोज दे दी, इसने समझ लिया, मेरे मशीन ने समझ लिया, ठीक है, वो अब सीख गया सब कुछ, पैटर्न वैटर्न सब कुछ सीख गया। फिर वो क्या करेगा, ये जो लास्ट वाली रो है इसमें मतलब ये हम देंगे, फिर हम उसे क्या करेंगे, हम उसे नया डेटा देंगे, मतलब हमने ये छुपा के रखा थी लास्ट वाली रोज, उससे छुपा के रखी थी, और हम इसका आउटपुट छुपा देंगे, ठीक है, हम बस ये देंगे, हम उसे बोलेंगे तुम 4 kg के लिए प्रिडिक्ट करो, ठीक है, हम उससे सिर्फ 4 के, हम ये नहीं बताएंगे उसे, ठीक है, ये वाला जो 10,000 लिखा है, ठीक है, हम उसे वो नहीं बताएंगे, हम उसे बोलेंगे ये नया डेटा है, तुम 4 kg पे प्रिडिक्ट करो अब, ठीक है, ये जो 10,000 है हम उसे छुपा देंगे अभी के लिए, ठीक है, ये हमें पता है 10,000 है, लेकिन हम जो है अपनी मशीन से छुपा देंगे, उससे बोलेंगे कि तुम ये 4 kg पे प्रिडिक्ट करो, तो वो जितना प्रिडिक्ट करेगा, समझो उसने प्रिडिक्ट करा 7,000, ठीक है, अब हम कंपेयर करेंगे ये जो डेटा प्रिडिक्टेड डेटा, ठीक है, प्रिडिक्टेड आउटपुट कहते हैं, प्रिडिक्टेड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट में कितना फर्क है, ठीक है, ये हमारा एक्चुअल आउटपुट था। एक्चुअली क्या है, हम इसे हम अगर हम नया डेटा लेकर आ रहे हैं, हम जो हमें डेटा होता है उसी में हम समझो अगर कुछ रोज छुपा देते हैं और बाद में उसे बोलते हैं कि उन उन रोज का फिर हम इनपुट देते हैं उसे, और फिर उससे बोलते हैं कि आउटपुट प्रिडिक्ट करो, और जब वो आउटपुट प्रिडिक्ट करेगा फिर हम उसे जो हमारे पास आउटपुट होता है उससे कंपेयर करते हैं, ये एक्चुअल आउटपुट है, ठीक है, ये वाला एक्चुअल आउटपुट है, और ये 7,000 इसने प्रिडिक्ट किया है, ठीक है, तो हम देखते हैं ये कितनी गलती कर रहा है, ठीक है, बिकॉज गलतियां करता है, ऐसा नहीं है कि सीख जाता है, ठीक है, इतनी जल्दी कोई नहीं सीख पाता, तो मशीन भी हमारी काफी गलतियां करती है, ऐसा नहीं कुछ अच्छा बहुत अच्छा कर लेती है पहली बार में, काफी गलतियां करता है। इतना समझ में आया आपको कि अभी तक हम क्या कर रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं ट्रेनिंग टेस्ट स्प्लिट, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कहते हैं, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, मतलब हमारे कोड में यूज होता है ये ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करके। बेसिकली इसका मतलब यही है कि हम जो है 70% डेटा उसे उस मतलब ट्रेन करने के लिए यूज कर रहे हैं, ट्रेन मतलब उसे बोल रहे हैं कि तुम इससे सीखो चीजें, ठीक है, ट्रेनिंग के लिए यूज कर रहे हैं हम 70% डेटा, और बाकी का जो 30% है हम टेस्ट करेंगे, बाद में उसको उसका टेस्ट लेंगे, ठीक है, अपने मशीन का, ताकि हमें तभी तो पता चलेगा कि ये मशीन अच्छी है नहीं है, ठीक है। और आप सोच रहे होगे कि हम ये पूरा डेटा दे दें उसे और फिर कोई खुद से कोई नया डेटा बना के उसे पूछे आउटपुट क्या है, लेकिन अगर आप खुद से नया डेटा बनाओगे तो आपको भी उसका आउटपुट आना चाहिए ना, आपको ही नहीं आता फिर आप कैसे करोगे, इसलिए आपको आपके पास ये डेटा है बस, तो आप इसलिए एक समझो कुछ रोज हटा देते हो और बाद में उसका कुछ रोज का टेस्ट करते हो उससे, ठीक है। डिड यू अंडरस्टैंड दिस मच कि ट्रेन टेस्ट स्प्लिट क्या होता है? Yes, yes, I understand. हाँ, तो वही है कि मैं एक बार लास्ट में दोबारा समझा दूंगी, मतलब रिवाइज करवा दूंगी। बट ये समझ में आना चाहिए कि हम जो है 3 रोज दे रहे हैं समझो, और एक रो हम जो है छुपा रहे हैं उससे, और फिर एक रो का इनपुट दे रहे मतलब लास्ट वाली रो का, जब वो सीख जाएगा सब कुछ तो लास्ट वाली रो का हम उसे इनपुट देंगे और उससे बोलेंगे कि तुम ये प्रेडिक्ट करो 10,000, लेकिन उसने कितना प्रेडिक्ट किया 7,000, बताओ। तो सेम वे ये जो हमारी लाइन है, ये जो ग्रीन लाइन है, ये हमारा प्रिडिक्टेड डेटा है, मतलब इसने प्रिडिक्ट जो किया वो ये है प्रिडिक्टेड डेटा।
मतलब इसने ये लाइन प्रिडिक्ट करी, ये ग्रीन वाली लाइन पे, समझ लो ये ग्रीन वाली लाइन पे डॉट्स हैं, ठीक है, ऐसे डॉट्स हैं, इसने ये प्रिडिक्ट किया। और देखिए, और जो पर्पल वाले डॉट हैं, जो पर्पल वाले डॉट हैं, ये हमारा एक्चुअल डेटा है। तो आप देख रही है ना, इसमें देखो इसने कितना दूर दूर प्रिडिक्ट किया, मतलब थोड़ा सा दूर नहीं है, देखें कितना फर्क है। मतलब ये जो, मैं बताती हूँ, लेट मी जस्ट इरेज अ लिटिल, ठीक है, ये देखें, ये जो पर्पल वाले डॉट हैं, ये बता रहे, ये ग्रीन वाली लाइन इसने प्रिडिक्ट करी है, ठीक है। मतलब ये ऐसा कोशिश करता है कि ये एक लाइन प्रिडिक्ट करे जो जो इस इन सब से होते हुए जाए। लेकिन मतलब ये जो पर्पल वाले हैं, ये एक्चुअल डेटा है, ठीक है, ये पर्पल वाला हमारा क्या है, एक्चुअल डेटा। बट आप देख रहे हो ना कि ये लाइन से दूर है, इसका मतलब इसका प्रिडिक्शन उतना अच्छा नहीं है ना। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारी ग्रीन लाइन, मतलब ये एल्गोरिदम कोशिश करता है कि ये ग्रीन लाइन ऐसी बनाए कि ये जो पर्पल, मतलब जो डॉट्स हैं उनसे पास हो, उनसे पास होगा मतलब एरर कम होगा, मतलब जो एक्चुअल, ये एक्चुअल डेटा है, ठीक है, ये पर्पल वाले। और ये ग्रीन वाला क्या है, प्रिडिक्टेड डेटा, मैंने आपको बताया अभी, ठीक है, प्रिडिक्टेड डेटा। तो ये क्या करता है, हमारा कंप्यूटर ये कोशिश करता है कि ये ग्रीन लाइन जो है इन सब के पास से होके गुजरे, ताकि जो एरर है वो कम हो। एरर क्या होता है, मतलब आप मतलब जो मशीन प्रिडिक्ट कर रही है वो प्रिडिक्टेड डेटा है। अब वो प्रिडिक्ट कर रही है भाई 7,000, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, और हमारा एक्चुअल डेटा क्या था, 10,000 था, ठीक है। तो एरर कितने का है, एरर आया 3,000 का, ठीक है, तो 3,000 का एरर, ये है एरर। ये जो समझे, जो मैं बनाऊंगी अभी न्यू लाइन से, वो होगा एरर, समझे। मैं इससे बना रही हूँ, लाइट ग्रीन भी नहीं, हाँ ब्लू से मैं बना रही हूँ, ये होगा एरर। ये लाइन जो है, ये हमारा एरर है। ब्लू वाली लाइन जो है वो दिखा रही है कि कितना दूर है, जो ग्रीन वाली लाइन है और जो पर्पल वाले डॉट है उनमें कितना फर्क है, देखो कितना दूर दूर है, तो इसमें मतलब एरर ज्यादा है। जितनी लंबी लाइन, मतलब जितना दूर ये डॉट है उतना ज्यादा एरर, एरर एरर ज्यादा है, ठीक है। तो मतलब ये होता है हमारे, इससे हम ये सीखते हैं, ठीक है। और मैं आपको एक और बना के दिखा देती हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आया उतना तो। जैसे ये हमारा ग्राफ है, ठीक है, एक्स और वाई, ठीक है। हम इनपुट, हम डे हम क्या करेंगे, जो हमारा डेटा सेट होगा उसे हम यहाँ प्लॉट कर लेंगे, ठीक है, जो हमारा डेटा सेट होगा हम उसे यहाँ प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है, समझे, वो इस फॉर्म में आया, समझे। हाँ, पहले क्या करता है ये एल्गोरिदम, क्या करता है, इनपुट और आउटपुट को प्लॉट कर लेता है, ठीक है, ये हमारा डेटा है, ठीक है, ऐसा डेटा है। पहले एल्गोरिदम क्या करेगा, सबसे पहले जो डेटा सेट है वो प्लॉट कर लेगा, ठीक है, पहला स्टेप वो यही करता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा उसका, वो सोचेगा कि मुझे एक ऐसी लाइन बनानी है जो इन सबके बहुत पास से होते हुए गुजर पाए, लेकिन सबके पास से होते हुए गुजरे, मतलब जो सबके पास से होते हुए गुजरे। तो अगर मैं बनाना चाहूँ तो मैं कुछ ऐसी नहीं बनाती, क्योंकि यही लाइन तो सबके पास से गुजर रही है ना, मैं इधर तो नहीं बनाती ना, या मैं इधर तो नहीं बनाती, मैं इधर ही बनाती ना, ठीक है। या अगर मैं वो लाइन अगर इधर भी बना लेती तब भी वो बहुत गलत हो जाती, बिकॉज यहाँ से तो बहुत दूर है। जितना ग्रीन लाइन के पास होगा उतना एरर कम होगा, ठीक है। जितना, मैं लिख देती हूँ, जितना जितना ब्लू डॉट्स पास होंगे, करीब होंगे ग्रीन लाइन से, पास होंगे ग्रीन लाइन से, उतना एरर कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि ये जो ग्रीन लाइन है ये क्या है, ये हमारा प्रिडिक्टेड डेटा है, मतलब जो हमारे मशीन ने प्रिडिक्ट किया, जब हमने उसे नया डेटा दिया तो उसने ये डेटा प्रिडिक्ट किया, ये लाइन प्रिडिक्ट करी। और ये जो ब्लू है ये हमारा एक्चुअल डेटा है, जो उसको प्रिडिक्ट करना चाहिए था लेकिन उसने प्रिडिक्ट नहीं किया, क्योंकि वो उतना अच्छी एक्यूरेसी नहीं होगी, ठीक है। तो वही होता है, ठीक है। वो एक्चुअली ऐसे नहीं है कि पहली बार में ये लाइन बन जाती है, क्या होता है, हमारा जो मॉडल होता है वो काफी बार ट्राई करता है, पहले ऐसे बनाएगा, ऐसे बनाएगा, ऐसे बनाएगा, ऐसे बनाएगा, ठीक है। वो कोशिश करता रहता है, काफी लाइंस बनाता है वो, और वो देखता है एरर किस में सबसे कम आ रहा है, फिर वो एरर कैलकुलेट करता है। अभी मैं बताऊंगी वो एरर कैसे कैलकुलेट करता है, ठीक है। तो वो देखता रहता है कौन सी लाइन अच्छी, कौन सी लाइन अच्छी, फिर फाइनली एक बहुत अच्छी लाइन बनाता है, बेस्ट, उसे हम कहते हैं बेस्ट फिट लाइन, या बेस्ट फिट स्ट्रेट लाइन, जो भी कह दो। बेस्ट फिट लाइन मतलब
वो मतलब पहली बार में नहीं बन पाती हमारे मशीन से, वो ट्राई करता रहता है। तो जब ये वाली लाइन बन जाती है अच्छी वाली, जिससे जिसके पास सारे डेटाज हैं, मतलब जिसके पास सारी वैल्यूज हैं, उसे हम कहते हैं बेस्ट फिट लाइन, ठीक है। मतलब ये कोशिश करता है कि क्लोज से क्लोज, मतलब एज क्लोज एज पॉसिबल पहुंच जाए एक्चुअल वैल्यूज से। ये हमारी एक्चुअल वैल्यूज है ना, एक्चुअल डेटा, ठीक है। तो ये जो, और फिर हम क्या करते हैं, हम अब देखो, अब हमने बना लिया लाइन, ठीक है। अब इसने बेस्ट फिट लाइन बना लिया। अब ये क्या करेगा, अब ये एरर कैलकुलेट करता है कि एरर कितना है, ठीक है, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं एरर कितना है। और फिर ज्यादा एरर है तो हम ये सोचेंगे ना कि हम अपने मशीन को कैसे इंप्रूव कर पाए। तो हम वो एरर देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम ऐसे लाइन बनाते हैं। ये जो ब्लू डॉट्स हैं, इनसे जो है लाइन बनाते हैं हम एक, ठीक है। इनसे हमने एक लाइन बनाई ऐसी, इनसे हम लाइन बना रहे हैं, ठीक है। ऐसी हमने लाइन बनाई, ठीक है। तो हमने वो लाइन बनाई, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, फिर उससे जो है ये जो लाइन का जो लेंथ है, मतलब जो डिस्टेंस है, ये जो लाइन है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, डिस्टेंस बिटवीन एक्चुअल डेटा एंड प्रिडिक्टेड डेटा। ये हमें चाहिए होता है, ठीक है, प्रिडिक्टेड डेटा, ठीक है। तो हमें जब हम ये सारी जो रेड लाइन है, ये सारी जोड़ देंगे, इन सारी की मतलब इन सारों का डिस्टेंस जोड़ देंगे, जितनी भी रेड लाइन आपको दिख रही है, उन सारी का जब हम डिस्टेंस जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल एरर, ठीक है। 1 सेकेंड, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ओके। यहाँ जो डिस्टेंस है, बहुत ज्यादा पास हो गया, समझे। ये जो पहला वाला डिस्टेंस है, ये क्या है, D1। ये है D2, मतलब डिस्टेंस 1, डिस्टेंस 2, डिस्टेंस 3, डिस्टेंस 4, डिस्टेंस 5, डिस्टेंस 6, डिस्टेंस 7, डिस्टेंस 8, डिस्टेंस 9 और डिस्टेंस 10, ठीक है। समझ में आया, अभी तक आ रहा है कुछ, लाइक थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट। Yes, I am able to understand. कुछ डाउट तो नहीं है अभी तक, बिकॉज No, no, पूछ no, sir, लीजिएगा I वरना तो। understood this. क्या, थोड़ा जोर से बोलिए। I have understood this. ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होता है, हम ये लेते हैं, ठीक है। जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस समझो। ये डिस्टेंस कैसे हम रीड करते हैं, मतलब आपको ग्राफ के बारे में अगर थोड़ा भी आइडिया है तो आपको पता होगा। ऐसे देखेंगे इधर कौन सी वैल्यू है, ठीक है। यहाँ समझिए 6 है, यानी नीचे वैल्यू देखेंगे, ठीक है, समझिए यहाँ 8 है। फिर इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं हम, ठीक है, दो पॉइंट्स के बीच में, ठीक है। तो हम डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। और कुछ, बिकॉज देखें, अब ये थोड़े डिस्टेंस जो है नेगेटिव आएंगे, थोड़े पॉजिटिव आएंगे, बिकॉज थोड़े लाइन के नीचे हैं और थोड़े देखिए लाइन के ऊपर है। ये सब लाइन के ऊपर है, D1, D2, D4, D5, D7, D9। और जो नीचे वाले हैं वो क्या है, D10, D8, D6, D3। पहले आप ये समझ लीजिए कि एरर, मतलब हमें एरर निकालना है, ठीक है। सबसे पहले क्या है हमारा गोल, हमने समझो इसने ये लाइन बना ली ग्रीन वाली, ठीक है, इसे कहते हैं बेस्ट फिट लाइन। ये बना ली। अब हम क्या करेंगे, जो एक्चुअल डेटा है, ये ब्लू वाला जो एक्चुअल डेटा है, और ये जो ग्रीन लाइन है जो प्रिडिक्टेड डेटा है, उसके बीच में एक लाइन बना लेंगे। क्यों बनाएंगे, क्योंकि हमें एरर देखना है ना। एरर का मतलब है डिस्टेंस कितना है, मतलब एरर मतलब कि आपकी कितनी गलती कर रहा है, तो इसमें कितना फर्क है। एरर का मतलब है बेसिकली कितना फर्क है, ठीक है। तो कितना फर्क है, इसकी वैल्यू निकालेंगे पॉइंट की। ये जो ब्लू पॉइंट है, ठीक है, ब्लू पॉइंट है, इसका मतलब वो निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स। और यहाँ जो ग्रीन पॉइंट पे जहाँ ये मीट कर रहा है, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, ठीक है। उन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा डिस्टेंस आ जाएगा D1। डिस्टेंस D1 आ जाएगा तो जो है हमें पता चल जाएगा कितना फर्क है। समझो ये ब्लू पॉइंट की वैल्यू है 7,000, जो मैंने एग्जाम नहीं 10,000, ठीक है। और ये जो इसने प्रिडिक्ट किया है वो है 7,000। मैंने जो एग्जाम्पल लिया था मैं वही बता रही हूँ। तो अब एरर कितना हुआ, एरर हुआ 10,000 माइनस 7,000, मतलब 3,000। तो यही तो माइनस कर रहे हैं, मतलब वही डिस्टेंस ले रहे हैं, ठीक है। या तो क्योंकि ग्राफ में डिफरेंस दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस ही होता है, ठीक है। हमें देखना है वही कि कितना फर्क आ रहा है, तो हम डिस्टेंस ले रहे हैं, ठीक है। क्यों डिस्टेंस ले रहे हैं, बिकॉज हमें देखना है कि एक्चुअल और प्रेडिक्टेड वैल्यू में कितना फर्क है। वो हम कैसे देख सकते हैं, डिस्टेंस लेके देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, अब हमें इन सारी वैल्यूज का देखना है डिस्टेंस, ठीक है।
तो जो लाइन से ऊपर जो वैल्यूज है उनको हम पॉजिटिव मान रहे हैं, बिकॉज और जो लाइन से नीचे वैल्यूज हैं, जो लाइन से नीचे जो डिस्टेंस है उनको हम नेगेटिव मान रहे हैं। अगर हम हमें टोटल एरर निकालना होता है, ठीक है, सारे का, तो हम सबको ऐड कर देंगे, ठीक है, टोटल एरर निकालते हो। और एक ही चीज को आप पॉजिटिव मान सकते हो, मतलब लाइन के नीचे और लाइन के ऊपर दोनों चीजें सेम नहीं होती। आप एक चीज को पॉजिटिव मान सकते हो तो आपको दूसरे को नेगेटिव मानना पड़ेगा। अगर आप ऊपर ये वाला अगर आप नेगेटिव मान रहे हो तो इसे आपको पॉजिटिव मानना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे ही होता है। अब आगे बढ़ते हैं, 1 सेकेंड। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ कि मुझे एरर निकालना है, ठीक है, मेरा एरर क्या होगा, मैंने ऊपर वालों को पॉजिटिव माना है तो मैं पहले इन लोग को लिखूंगी, D1 प्लस D2 प्लस D4। एरर कैसे निकालेंगे, सबको ऐड करके, D5 और D7 और D9, ठीक है, ये हमारे पॉजिटिव वाले हैं। हमारे नेगेटिव वाले कौन कौन से हैं, माइनस में लिखूंगी, माइनस D3, यहाँ तो प्लस आएगा, -D3, -D6, -D8 और -D10। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक को पॉजिटिव लेना होता है, या तो आप ऊपर वालों को पॉजिटिव ले सकते हो या नीचे वालों को, ठीक है। एक को पॉजिटिव लेना है तो दूसरे वाले डिस्टेंस को आपको नेगेटिव लेना है, ठीक है। और ये सारे डिस्टेंसेस ऐड करके ही हमें पता चलेगा ना कि ये जो हमारा जो मतलब हमें ये डिस्टेंस हम क्यों ले रहे हैं। डिस्टेंस निकाल के तो आपको पता चलेगा ना कि कितना दूर, कितना फार हमने, कितना गलत प्रिडिक्ट किया हमने। लाइन इधर थी, हमें प्रिडिक्ट करना था ये ब्लू वाला डॉट, ठीक है, तो हमने काफी गलत प्रिडिक्ट किया। देख रहे हो आप, डिस्टेंसेस इतने काफी दूर दूर हैं वैसे तो, ठीक है। तो अब इसमें जब हम निकालेंगे तो ये तो नेगेटिव वैल्यूज है ना, इसलिए हम क्या करते हैं, हम स्क्वायर कर लेते हैं, क्योंकि हमें ये नेगेटिव वैल्यूज जो हैं इनको वी हैव टू गेट रिड ऑफ देम, ठीक है। डिस्टेंस भले ही हम नेगेटिव ले रहे हैं, मतलब ये साइड की डिस्टेंसेस नेगेटिव आ रहे हैं, लेकिन हमें डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं होता, इसलिए हमें पॉजिटिव में लेना है, तो हम इन सबका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। हम इन सबका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर प्लस D4 स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंसेस नेगेटिव में आ रहे हैं इसलिए हम स्क्वायर कर रहे हैं। D5 स्क्वायर प्लस D7 स्क्वायर प्लस D9 स्क्वायर प्लस ये वाला भी स्क्वायर आ जाएगा, -D3 का होल स्क्वायर, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, -D6 का होल स्क्वायर, -D8 का होल स्क्वायर और -D10 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। Why are we squaring them 1 minute? Why are we squaring them? बिकॉज जब हम अगर हम नॉर्मली निकालते एरर हमारा तो मतलब मैंने बोला था ना, एक को पॉजिटिव लेना है, ठीक है। आपको अपने इस डायग्राम में या तो आप जो है ये वाली लाइन है, जो लाइन है, लाइन से ऊपर आपको पॉजिटिव लेना और लाइन के नीचे नेगेटिव लेना है, ठीक है, ऐसा करना होता है हमें। एक चीज पॉजिटिव, एक एक साइड आप पॉजिटिव ले सकते हो, या तो लाइन के ऊपर वाली साइड, आप लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स हैं, वो जो डिस्टेंस है, उनको आप पॉजिटिव ले लो, और लाइन के नीचे जो है उनको आप नेगेटिव ले लो। और यू कैन डू उल्टा ऑल्सो, यू कैन टेक अपोजिट, यू कैन टेक लाइन के ऊपर वाले नेगेटिव एंड लाइन के नीचे वाले पॉजिटिव, ठीक है, बिकॉज दिस इज बाय कन्वेंशन। नाउ जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे नेगेटिव आते हैं कुछ, बिकॉज लाइन के नीचे वालों को हमने नेगेटिव लिया है, सो मेरे ये नेगेटिव आए, -D3 -D6। तो हमें अपने एरर जब कैलकुलेट करते हैं, हमें जो है नेगेटिव नहीं चाहिए होता, हमें ये नेगेटिव को एलिमिनेट करना होता है, इसलिए हम जो है स्क्वायर कर देते हैं, वी स्क्वायर द एरर। ये जो हमारा एरर है हम इसका स्क्वायर निकाल देते हैं, ठीक है। डिड यू अंडरस्टैंड, जस्ट टू मेक एवरीथिंग पॉजिटिव, बिकॉज यहाँ नेगेटिव है ना कुछ, क्योंकि आप जब करोगे ना, Yeah. आप जब यहाँ डिस्टेंस निकालोगे तो आपका नेगेटिव में आएगा, ठीक है। तो इसलिए हम जो है उसको Can you पॉजिटिव take the करने के formula लिए, for simple regression? व्हाट, I'm sure this must drive it. You'll drive a formula for simple regression, या I think, with this. या सो दिस इज द फॉर्मूला, Yeah. मतलब ये फॉर्मूला है एरर Yeah. को स्क्वायर, इसको मैं समीशन के फॉर्म में लिख दूंगी, यू नो व्हाट इज समीशन। Yeah. या सो मैं इसको समेशन के फॉर्म में ऐसे लिख दूंगी, DI का स्क्वायर, I इज इक्वल टू 1 Good. से लेके m, ओके, एंड दिस इज माय मीन स्क्वायर एरर, ठीक है। दिस इज हाउ वी कैल, सो मतलब ये फॉर्म, ये बेसिकली उसी के बराबर है, मतलब दिस एंड दिस इज सेम ओनली। DI स्क्वायर मीन्स फर्स्ट I will be 1, okay, from I is equal to 1 to n, so when I is equal to 1, then it will be D1 square, when I is equal to 2 it will be D2 square, like that it will be till I is equal to 10. Here our n is 10, Okay. okay, so D10 square. So that's how summation works, so it is DI square, okay. Or no, I mean this is only the distance, okay. Or you can write this distance as summation,
You can, if let me draw again because that was getting a little messy. Let me draw the points because imagine these are the points. Okay, I'm just drawing 5 or 6 points. Okay, एंड अब मैं क्या करूंगी, वही मतलब मैं ये लाइन बनाऊंगी। ये डिस्टेंस अब हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, एरर कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसको वाई आई मानते हैं, मतलब y1 समझे, मैंने इसको y1 माना, इसको y2 माना, इसको ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को, ठीक है, वाई आई मान मतलब y1 y2 y3 हम मान रहे हैं एक्चुअल जो डेटा है उसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को, एक्चुअल डेटा के पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स को, मतलब ये पॉइंट की लोकेशन, जैसे फॉर एग्जांपल 2,3 ऐसे होता है एक पॉइंट का लोकेशन, ठीक है, मतलब 2,3 का मतलब है कि ये 2 से मतलब 2,3 का मतलब है ये यहाँ है 2 और 3 यहाँ है इतना, ठीक है, ये है 2,3 ये पॉइंट, ठीक है, तो मतलब यहाँ भी हम मतलब y1 y2 y3 y4 y5 y6 हम ये क्यों नेम कर रहे हैं इस पॉइंट्स को, मतलब इनके कोऑर्डिनेट्स को, क्योंकि हमें ये जो समझे मतलब ये और इस ये जो ब्लू लाइन पे जो पॉइंट्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस निकालना है, मतलब डिस्टेंस हमने निकाल लिया। ये डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे, आप मतलब डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला बेसिकली है कि जो आपका कोऑर्डिनेट है उन दोनों को माइनस कर दो, ठीक है, जो दोनों कोऑर्डिनेट्स है हमारे क्या है, एक ये पॉइंट है ऑरेंज वाला और एक पॉइंट लाइन पे होगा, तो उन दोनों को माइनस करके तो डिस्टेंस आएगा, तो ये फॉर्मूला सही है, लेकिन इसमें डिस्टेंस का फॉर्मूला तो डालो। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस हम ऐसे निकालेंगे, सबसे पहले इन सबको नेम कर दिया हमने फॉर इजियर रेफरेंस, ठीक है, और जो इनके मतलब ये जो जहाँ ये लाइन पे टच कर रहे हैं उन्हें हम कह देंगे वाई आई हैट, ठीक है, लेट मी जस्ट यूज अ डिफरेंट कलर, मतलब ये जो लाइन है ये यहाँ टच हो रही है ना, इसे हम कह देंगे वाई आई हैट, क्योंकि आप ये मतलब y1 हैट नहीं y4 हैट, बिकॉज यस ये होगा y4 हैट, ये y4 होगा और ये y4 हैट कहेंगे, इस ये जहाँ लाइन को टच कर रहा है ब्लू वाली, ठीक है, इसे कहेंगे y4 हैट, y4, और बस ये इसे हैट कहते हैं, ये यूज होता है प्रिडिक्टेड वैल्यूज के लिए, ठीक है, हैट यूज होता है प्रिडिक्टेड वैल्यूज के, वरना सिंबल्स में कंफ्यूजन होता है ना, इसलिए हम इसे प्रिडिक्टेड वैल्यूज के लिए यूज करते हैं। तो y4 क्या है, ये जो हमारा एक्चुअल डेटा है, ठीक है, एक्चुअल डेटा के कोऑर्डिनेट्स हैं, और y4 हैट क्या है, जो ये ब्लू लाइन जो हमारी बेस्ट फिट लाइन है उस पे जो लाई कर रहा है कोऑर्डिनेट्स, जो हमारे इससे टच हो रहे हैं, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग है, ठीक है, तो मतलब ये तो डिस्टेंस निकालना है, ये जो पर्पल लाइन है हमें ये डिस्टेंस निकालना है ना, तो हम ये कैसे निकालेंगे, y4 और y4 हैट को माइनस करके, क्योंकि आपको डिस्टेंस निकालना होता है वो दो पॉइंट्स का माइनस ही करना होता है, ठीक है, तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, y4 माइनस y4 हैट, सॉरी y4 हैट, आपने अगर कभी पढ़ा हो तो आपको डिस्टेंस पता होगा, ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है, तो डिस्टेंस हमने निकाल लिया अब हमारा, ऐसे ही हम और भी निकालेंगे, यहाँ y6 है तो इसकी करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा y6 हैट, इन दोनों को माइनस करेंगे तभी ये मतलब डिस्टेंस आएगा, और डिस्टेंस होता है हमारा बेसिकली Just a एरर, minute. व्हाट, Y4 is the actual data. या y4 Actual इज data. एक्चुअल And डेटा के Y4 कोऑर्डिनेट्स, has the कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्चुअल डेटा, coordinates of actual data. And y4 हैट Y4 इज hat is प्रेडिक्टेड the वैल्यूज, predicted. या I'm so writing that down. yeah when you take, because we have to find the distance between them, yeah, Okay. सो डिस्टेंस ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो है y4 मतलब डिस्टेंस ढूंढने के लिए अगर हमें आपको दो पॉइंट्स के बीच में ऐसे डिस्टेंस ढूंढना है, समझो a और b, तो हम a के जो कोऑर्डिनेट्स है इमेजिन 2,3 एंड b के हैं 3,2, फॉर एग्जांपल इफ दीज आर द कोऑर्डिनेट्स देन वी विल सब्ट्रैक्ट दीज बोथ and you will get your distance, okay, we'll get our distance, that is how we find distance. Similarly here also we want to find the distance between these two points, okay, this orange point and this green point. Now how will we find it, we will draw a line and then we will name it d, okay, maybe d4 we can name it here because it is y, we are using y4 and y4 hat, and you have to find d4, so how will you find d4, you will find it
by subtracting y4 minus y4 hat. This is how you will find your distance. Okay, for all points you will find your distance like this. For y6 and y6, for this distance also, for d6 you will subtract y6 and y6 hat. For y1 you will for d1 you will find out by y1 and y1 hat. Okay, here also same thing. So did you understand till here? I will show you one example also कि distance कैसे निकाल रहे हैं, error कैसे निकाल रहे हैं. Okay, so that you understand better. Did you understand at least this much, or you have any doubt? Just let me know if you have any doubt, then I will move on. No, I understood. What? I cannot hear you. Can you please write in the chat? I understood. Okay, okay. So now let's move on. I will first write the formula and then I will show you an example. Or let me just show you an example, then only I'll write the formula. So for example, suppose we have three actual values. Okay, actual values and three predicted values. Okay, तो हम कंपेयर करेंगे उन्हें. ठीक है, ठीक है. अब हमारी एक्चुअल वैल्यू है और ये प्रेडिक्टेड है. प्रेडिक्टेड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वाई हैट. एक्चुअल वैल्यू को हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, अब समझे हमारी है 5 है, एक्चुअल वैल्यू 7 है और 9 है. प्रेडिक्टेड है हमारी 4, 10 और 8. ठीक है, अब हम बेसिकली एरर कैसे निकालेंगे? एरर हम निकालेंगे इन दोनों को माइनस करके. डिफरेंस देखेंगे ना. एरर का मतलब है कि हमारा कंप्यूटर कितना पीछे रह गया, मतलब कितने कितने, जैसे समझो यहाँ 1 यूनिट से पीछे रह गया, मतलब 5 और 4 में 1 ही यूनिट का डिफरेंस है ना. ठीक है, तो एरर कैसे निकालें कि कितना कितना पीछे रह गया, कितना नहीं कर पाया वो, कैसे कितना गलत प्रेडिक्ट किया उसने. ठीक है, वो होता है हमारा एरर. ठीक है, तो एरर हम कैसे निकालेंगे? y माइनस वाई हेड कर लो. ठीक है, इसमें एरर कितना निकलेगा हमारा? इसमें निकलेगा 1, इसमें निकलेगा -3 और इसमें निकलेगा -1. ठीक है, अब ये एरर देखो कुछ पॉजिटिव है और कुछ नेगेटिव है, इसलिए हम इन्हें स्क्वायर कर लेते हैं. ठीक है, स्क्वायर द एरर्स. इसलिए हमारे फॉर्मूले, मतलब अभी जो हम फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, मैंने आपको भी समीशन डी स्क्वायर बताया था ना, एक फॉर्मूला एमएससी करके. तो ये एमएससी का फुल फॉर्म होता है मीन स्क्वायर एरर. मीन स्क्वायर एरर. ठीक है, मतलब आपने स्क्वायर एरर को स्क्वायर कर दिया बेसिकली. ठीक है, तो जब आप स्क्वायर कर लोगे तो हमारे आएंगे एरर्स 1, 9 और 1. ये आ जाएगा हमारा एरर स्क्वायर करके. ठीक है, क्योंकि हमें नेगेटिव में नहीं चाहिए एरर, हमें पॉजिटिव बनाना है, इसलिए हम कर देते हैं. फिर हमारा एरर आ गया. अब एरर आ गए तीनों, अब हम इन्हें ऐड कर देंगे. ठीक है, हमने इन्हें ऐड कर दिया. हमारा हमारा आंसर आया 11. ठीक है, अब मीन स्क्वायर एरर का मतलब होता है पूरा स्क्वायर करके, एरर को स्क्वायर करके ऐड कर दो और फिर उसका मीन ले लो. मीन मतलब एवरेज. सो यहाँ 3 नंबर्स है. ठीक है, इनका एवरेज कैसे लेंगे? डिवाइड बाई 3 कर देंगे. आई होप यू नो मीन का फॉर्मूला. मीन का फॉर्मूला होता है सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है? यहाँ तीन तीन डेटा दिया हुआ ना, 1, 2 और 3. यहाँ 3 वैल्यूज दिए, 1, 9, 1. तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी हुई? 3. और सम सम मतलब ना 1 + 9 + 1, सिंपल कर दो. तो मीन स्क्वायर एरर का यही मतलब होता है कि पहले आप एरर निकालो, उसको स्क्वायर करो और फिर उसका मीन निकालो. ठीक है, तभी हम उसे मीन स्क्वायर एरर कहते हैं. ठीक है, तो मैं आपको वो मीन स्क्वायर एरर का फॉर्मूला बता देती हूँ. टेक्निकल मतलब फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं. मीन स्क्वायर एरर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, समीशन i इज इक्वल टू 1 से लेके n वाई आई माइनस वाई आई हैट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n. तो इधर वाई आई क्या है आपका? एक्चुअल वैल्यू. वाई आई हैट क्या है आपका? प्रेडिक्टेड वैल्यू. और n क्या है? कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थे या नंबर ऑफ सैंपल्स कह दें, मतलब कितनी रोज दी थी डेटा की. ठीक है, या ऑब्जर्वेशंस. Did you understand? I should give another example.
understood this very well. You know, You understood? yeah, I understood the concept very well. Okay, thank God. I was just scared you wouldn't understand because it's like little bit maths, right? And statistics, so it is maybe a little hard. So I was thinking. Do you want to go deeper in maths? Because this can go more deeper in maths also. Or maybe I think now only like I think enough, according to your views, I think this much is enough. enough, more than enough. What? More than enough, I think. Yeah, yeah. Because I actually wanted to make you understand. I don't want that you don't understand. It will be very bad for me. So, 1 second. Now let me make you revise once again. सो हम क्या कर रहे थे लीनियर रिग्रेशन में मैं अगर आपको शुरू से रिवाइज करवाऊं लीनियर रिग्रेशन में हम सबसे पहले क्या कर रहे थे हम डेटा हम देख रहे थे ठीक है डेटा जो है उसको प्लॉट कर रहे थे किस फॉर्म में प्लॉट कर रहे थे हम ऐसे जो हमारा एक्स है और वाई है सबसे पहले तो हम पता लगाना है कि हमें सिंपल लीनियर यूज कब करना है ठीक है सिंपल लीनियर रिग्रेशन हमें यूज कब करना है जब हमारे पास एक इनपुट दिया होगा और एक आउटपुट दिया होगा ठीक है तो दिस इज वेरी इजी मतलब बहुत छोटा डेटा सेट होगा ठीक है बस ऐसे 2 कॉलम का होगा एक इनपुट यहाँ ये इनपुट है और ये आउटपुट है सो दिस इज वेरी इजी राइट बट या सो आई विल टेल यू लेटर अबाउट इट हाँ तो एक इनपुट और एक आउटपुट कॉलम होगा ठीक है इसमें कुछ कुछ डेटा होगा ठीक है तब हम ये यूज करेंगे सिंपल लीनियर रिग्रेशन और हम तब रिग्रेशन तब यूज करते हैं जब हमें आउटपुट में क्या होता है नंबर प्रिडिक्ट करना होता है प्रिडिक्ट नंबर्स ठीक है जैसे हाउस प्राइस प्रिडिक्शन आई गेव यू द एग्जांपल ठीक है यहाँ लिख देती हूँ हाउस प्राइस प्रिडिक्शन ठीक है अब हम क्या कर रहे थे सबसे पहले हम डेटा ले रहे थे उससे प्लॉट कर रहे थे ठीक है हमारा एल्गोरिदम क्या करता है वो डेटा लेता है उसे प्लॉट करता है फिर वो क्या करता है वो जो है हमारी जो मशीन होती है वो बार बार ट्राई करती है एक लाइन बनाने की ठीक है बहुत बार ट्राई करती है फिर उसके बाद बहुत मेहनत करके वो जाके कुछ सही लाइन बना पाती है आई डोंट इवन थिंक आई ड्रू द राइट लाइन अगर लाइन ऐसी बनानी होती है जो ये सारे डेटा पॉइंट से पास करे मतलब सबसे करीब हो ठीक है मिनिमम एरर तो आई थिंक ये वाली होती मे बी आई एम नॉट श्योर बट हाँ ऐसी होती है मतलब सबसे सारे पॉइंट से करीब हो ठीक है तो ये हमारी लाइन हो जाती है ठीक है तो फिर उसके बाद क्या करती है हमारा जो एल्गोरिदम है वो 1 मिनट में जो जूम आउट 1 सेकेंड ओके या सो हमारा जो पहला तो हम डेटा प्लॉट करते हैं सेकंड हम बेस्ट फिट लाइन बनाते हैं ठीक है बेस्ट फिट लाइन ये कैसी लाइन होती है जो पास लाइक ट्राइज टू पास as close as possible फ्रॉम द एक्चुअल डेटा वैल्यूज उनके ऊपर से पास करें तो और अच्छा है क्योंकि एरर तो जीरो हो जाएगा जब ऊपर से पास करेंगे बिकॉज डिस्टेंस जीरो हो जाएगा ना या लेकिन मोस्टली केसेस में इतना पास भी नहीं हो पाता इतना एक्यूरेसी नहीं आ पाती मतलब इतना अच्छा प्रेडिक्ट नहीं कर पाता तो वो थोड़ा पास से पास कर ले ठीक है पॉसिबल फ्रॉम द एक्चुअल डेटा वैल्यूज हमारी एक्चुअल डेटा वैल्यूज कौन सी हैं जो ग्रीन में है ठीक है ये जो ग्रीन वाली है ये क्या है हमारी एक्चुअल डेटा वैल्यूज और ये जो पूरी लाइन है ये लाइन बनती कैसे है लाइक दिस लाइन इज लाइक इसमें इसमें भी वो हैं डॉट्स हैं लाइक वही हमारे प्रिडिक्टेड वैल्यूज हैं ठीक है हम उन डॉट्स को बस कनेक्ट कर देते हैं ताकि ये लाइन बन जाए और कुछ भी नहीं है ठीक है हम उस डॉट को कनेक्ट कर देते हैं ताकि लाइन बन जाए तो ये डॉट ये जो लाइन है ये हमारी वैल्यूज प्रिडिक्ट करती है ठीक है मतलब आउट जो हमारी मशीन ने प्रिडिक्ट किया वो है ये ब्लू वाली और ग्रीन वाले हैं जो हमारे पास एक्चुअल डेटा था फिर हम क्या करते हैं हम जो है डिस्टेंस निकालते हैं ये जो ग्रीन और ब्लू में कितना डिस्टेंस है ताकि डिस्टेंस से हमें क्या पता चलेगा एरर तो हम जब डिस्टेंस निकालते हैं तो हम क्या करते हैं वाई आई माइनस मतलब ये एक्चुअल डेटा का कोऑर्डिनेट्स है ठीक है एक्चुअल डेटा के
कोऑर्डिनेट्स। और ये क्या है, वाई आई हैट क्या है, प्रेडिक्टेड, मशीन ने जो हमारा प्रेडिक्ट किया, प्रेडिक्टेड डेटा के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो जो एक्चुअल डेटा है और जो प्रिडिक्टेड डेटा है, मतलब उन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, फिर ये डिफरेंस नेगेटिव में आ रहा होता है, बिकॉज ये एरर, मतलब डिस्टेंस बोल दो या एरर बोल दो, तो ये एरर नेगेटिव में भी आ रहा होता है, क्योंकि मतलब जो पॉइंट्स जो है लाइन से ऊपर होते हैं वो तो पॉजिटिव होते हैं, लेकिन हमने देखा ना जो लाइन से नीचे होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। मतलब खुद से लेना होता है, एक को पॉजिटिव लेना होता है और एक को नेगेटिव, तो आपकी मर्जी, आप किसी को भी लो। ठीक है, तो इसलिए हम स्क्वायर कर देते हैं, तो हम अपना जो फॉर्मूला होता है वो मीन स्क्वायर एरर होता है। पहले एरर, मतलब एरर को हम स्क्वायर कर रहे हैं और फिर मीन निकाल रहे हैं। तो मतलब एरर को स्क्वायर कैसे करेंगे, समेशन आई इज इक्वल टू 1 से n वाई आई माइनस वाई आई हैट का स्क्वायर। अब मीन निकालना, मीन निकालने का मतलब जो सम होता है उसको जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो। ये फॉर्मूला आपको क्लियर है बहुत? देन वी कैन मूव ऑन। Yes. Yes. ओके, सो एमएससी का जो डेफिनेशन है वो ये होती है, एवरेज, और यू कैन से मीन, एवरेज और मीन ऑफ द स्क्वायर्ड प्रिडिक्शन एरर्स। प्रिडिक्शन एरर इसको कहते हैं वाई आई माइनस वाई हैट, कि हमारा एक्चुअल और प्रिडिक्टेड डेटा कितना डिफर कर रहा है, कितना वेरी कर रहा है, कितना दूर दूर है, कितना अलग है एक दूसरे से। ठीक है, ये होना तो पास ही था ना, होना तो सेम ही था। हम अगर हमारा मशीन बहुत अच्छा प्रेडिक्ट करती, समझे हमारा एक्चुअल डेटा, हमारा समझे एक्चुअल डेटा है, हमारा एक्चुअल डेटा अगर हमने 700 माना, और हम अगर अगर हमारी मशीन बहुत अच्छी होती, ठीक है, मशीन का आउटपुट, अगर अगर हमारी मशीन बहुत ही अच्छी होती, 100% एक्यूरेसी होती, तो वो 700 ही प्रेडिक्ट करती। लेकिन अब इतनी अच्छी हो नहीं सकती, ठीक है, बिकॉज इतना पॉसिबल नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 90% एक्यूरेसी आ पाती है मशीन लर्निंग में, वैसे 80 मेनली आती है। ठीक है, तो मतलब 80% वो, मतलब अगर आप उसे 100 क्वेश्चन देंगे तो वो 80, मतलब 100, अगर आप उसे नया नया डेटा देंगे 100 के, आप 100 वैल्यूज निकालो तो वो 80 सही निकालेगी और 20 गलत। तो मोस्टली 80 या 90% तक एक्यूरेसी आ पाती है। तो एक्चुअल डेटा समझो 700, वो निकाल रही है 810, तो यही दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो हमारा एरर होता है। तो वही एमएससी से हम वही कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो हम बेसिकली एमएससी कैलकुलेट क्यों करते हैं, एमएससी और इसमें और भी चीज़ें होती हैं, तो हम वो कैलकुलेट इसलिए करते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारा मतलब कि हमारा जो है कैसा है हमारा डेटा। ठीक है, लाइक क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि हमें देखना होता है एरर कितना आ रहा है। ठीक है, बेसिकली एरर एरर देखने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, इट दीज आर कॉल्ड रिग्रेशन मैट्रिक्स, मतलब बेसिकली बस ये है कि हम एरर ढूंढने के लिए करते हैं। क्या मतलब, हम मतलब आपने आपने एल्गोरिदम बना लिया, ठीक है, आपने अपना मॉडल बना, मतलब आपने जो समझो अपना प्रोजेक्ट बना लिया, लेकिन आप देखोगे भी तो कि वो प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट कितना अच्छा है। ठीक है, वो मतलब जैसे हमने अभी रिग्रेशन यूज किया है, ठीक है, तो हम ये भी तो देखेंगे कि आपका आपका आउटपुट कैसा आ रहा है। ठीक है, आपने बस बना लिया लेकिन आपने आउटपुट नहीं देखा, आपने तो फायदा क्या हुआ कि कितना, मतलब एरर नहीं देखा आपने कितना आ रहा है, बिकॉज अगर एरर ज्यादा आ रहा होता है तो हम कुछ चीजें लगा के एरर को कम करने की कोशिश करते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं बस बता रही हूँ कि रिग्रेशन मैट्रिक्स मतलब होता है कि हम देख रहे हैं एरर कितना आ रहा है। ठीक है, एरर कैलकुलेट करने की अलग अलग तरीके हैं। पहला है मीन स्क्वायर एरर, जो मैंने आपको अभी पढ़ा है, दिस इज द मेन वन जो हम यूज करते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या था, समेशन वाई आई माइनस वाई आई हैट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, आई इज इक्वल टू 1 से लेके स्मॉल। ठीक है, तो ये सबसे सिंपल वाला होता है। सो उसके बाद होता है दूसरा, दूसरा होता है एम ए ई, एम ए ई, इसका फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म होता है मीन मीन स्क्वायर्ड एरर, ये तो मैंने बता दिया, मीन स्क्वायर्ड एरर। ठीक है, अब मैं दूसरा बता रही हूँ, एम ए ई, ये भी एक तरीका है जिससे हम एरर निकालते हैं, बट हम मोस्टली ये फर्स्ट तरीका ही यूज करते हैं। आप कोई भी चाहो कोई भी यूज कर सकते हो, मैं भी बताऊंगी कि आपको कौन सा वाला यूज करना चाहिए। ठीक है, सेकंड है मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर में हम ये करते हैं, पहले तो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं।
एवरेज, एवरेज इसमें भी लेते हैं, या मीन कह लो, मीन ऑफ व्हाट, ऑफ द एब्सोल्यूट प्रिडिक्शन एरर्स। मतलब मैं बताती हूँ, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये है कि हम देखें, मैंने आपको कहा था कि हमारा एरर नेगेटिव में आ रहा है। हमने ये पहली बात तो आपने मुझसे पूछा था स्क्वायर कर ही क्यों रहे हैं, तो मैंने बोला था हमारा एरर जो है वो नेगेटिव में आ रहा है ना, हमें वो पॉजिटिव करना है, इसलिए हम स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है। एमएससी में हम स्क्वायर करते हैं, एमएई में हम क्या करते हैं, हमारा इसमें भी मतलब एरर तो वही है, नेगेटिव आ रहा है, तो आप स्क्वायर ना करके आप ये कर सकते हो, आप उसका मॉड ले लो। मॉड से क्या होता है, मॉड के अंदर जो भी वैल्यू होती है वो पॉजिटिव हो जाती है खुद से, ठीक है। मॉड आपको पता ही होगा, आई होप आपने यूज किया हो। डू यू नो व्हाट इज मॉड? ये जो लाइन है, ये जो डंडी है, दिस इज कॉल्ड मॉड। यू नो व्हाट इज मॉड? I exactly don't remember now, but I have heard the concept. कैन यू स्पीक अ लिटिल लाउडली? I, I forgot right now. I know, but what is not. मॉड बेसिकली ये होता है कि लाइक वन सेकेंड, मॉड का मतलब ये होता है कि बेसिकली आपकी जो वैल्यू होती है, आप जब मॉड लगा दोगे, ठीक है, जैसे -1 है उस पर आप मॉड लगा दो, तो अब ये वैल्यू नेगेटिव नहीं रहती, हम इसे एज अ पॉजिटिव ट्रीट करते हैं, मतलब हम इसे 1 मान लेते हैं हम, ठीक है। मॉड के अंदर जो भी वैल्यू होती है हम उसे पॉजिटिव मान लेते हैं, हो वो नेगेटिव या मतलब हमें समझो पता नहीं है कि नेगेटिव आएगी वैल्यू या पॉजिटिव, लेकिन हमें चाहिए पॉजिटिव, तो हम मॉड लगा लेते हैं। मॉड का मतलब ये होता है कि उसके अंदर जो भी वैल्यू होती है वो फर्क नहीं पड़ता, वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, हम उसे पॉजिटिव की तरह ही ट्रीट करते हैं। तो जब हमें अपने एरर को मतलब हमारे एरर क्या आ रहे थे, वो नेगेटिव आ रहे थे, हमें उनको पॉजिटिव बनाना था, ठीक है। तो हमने दो तरीके लगाए, एक मतलब दो 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 तरीके से दिमाग लगा सकते हैं, या तो स्क्वायर कर लो, ठीक है। स्क्वायर किया तो उसका नाम क्या हो गया, एमएससी नाम हो गया, एक फॉर्मूला बन गया एक। दूसरा हमने क्या किया, हमने एब्सोल्यूट ले लिया, एब्सोल्यूट या मॉड, ठीक है, एक ही चीज है, एब्सोल्यूट या मॉड कहते हैं उसे। उससे क्या होता है, उसमें हमारा एम ए ई ये वाला फॉर्मूला आ गया, ये बन गया हमारा, तो हमारे ऐसे दो फॉर्मूले बन गए। सो यही चीज होती है, एब्सोल्यूट कहते हैं या मॉड कहते हैं। वही होता है कि लाइक चाहे नंबर नेगेटिव भी हो, लेकिन जब लाइक जब आपका कोई नंबर नेगेटिव भी हो, ठीक है, समझो -1 है, लेकिन जब आप उसे ऐसे लिखते हो ना, वो पॉजिटिव, हम उसे पॉजिटिव मान लेते हैं, फिर हम उसे एज पॉजिटिव ट्रीट करने लगते हैं, ठीक है। बेसिकली एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है, ये मॉड, ये जो दो डंडी है इसके बीच में हम कुछ भी लिख रहे हैं नंबर, उसका मतलब ये होता है Yes, yes, I एब्सोल्यूट understood. रिमूव द माइनस साइन, रिमूव द What माइनस is साइन, it? ठीक है। Yes. तो मैंने आपको कहा था कि हमने अपने एरर ठीक करने के लिए हमें अपना एरर जो है, एरर का नेगेटिव साइन हटाना था, तो हमने दो तरीके यूज किए, जिससे दो फॉर्मूला का जन्म हुआ, ठीक है। नेगेटिव साइन हटाना था, उससे दो फॉर्मूले एक एक स्क्वायर कर लिया, ठीक है, उससे भी नेगेटिव हट गया, एक मॉड कर लिया, इससे भी नेगेटिव हट गया, ठीक है। तो ये जो है एमएई का फॉर्मूला है ये वाला, इसमें मॉड यूज हो रहा है। एमएससी वाले में जो है स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। ये दोनों ही एरर ढूंढने के लिए यूज होते हैं। अभी मैं बताऊंगी, आप सोच रही होंगी दो क्यों यूज करें, एक ही तरीके से मतलब पॉजिटिव बना लेते हैं, दो क्यों यूज करें वो भी मैं बताऊंगी अभी आगे, ठीक है। और एक और तरीका है जिससे हम ढूंढते हैं एरर। मैं आपको अभी एरर के तरीके बता रही हूँ, ठीक है। एरर के 3 तरीके हैं, एमएससी अभी पढ़ा, उसके बाद एमए वो भी अभी पढ़ा, अब हम तीसरा पढ़ने जा रहे हैं, वो है RMSE, ठीक है। ये क्या होता है, RMSE होता है बेसिकली ये करता क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एमएससी, स्क्वायर रूट ऑफ एमएसई। तो बेसिकली जब हम स्क्वायर कर देते हैं, समझो आपका आपका अगर वेट लूं मैं किलोग्राम से, समझो आपका 50 किलोज है वेट, अगर मैं इसका स्क्वायर कर देती हूँ तो ये यूनिट जो है ये भी स्क्वायर हो जाती है, राइट। मतलब 50 किलो स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, 50 का स्क्वायर भी हो जाएगा और ये यूनिट पे भी स्क्वायर लग जाता है, जब भी हम स्क्वायर करते हैं ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, यूनिट का भी स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए जब भी हम स्क्वायर करते हैं तो यूनिट चेंज हो जाती है, बट हम एमएससी में क्या कर रहे थे, हम स्क्वायर कर रहे थे तो यूनिट चेंज हो जा रही थी, ठीक है।
ठीक है, यूनिट समझो मीटर में थी। ठीक है, अगर हमारा 50 मीटर आंसर आया, हमने एमएससी लगाया, मतलब एरर हमारा समझो 50 था, और यूनिट भी थी उसके साथ। ठीक है, अब हमने इस पे लगा दिया स्क्वायर, एमएससी लगा दिया हमने, मतलब स्क्वायर कर दिया हमने। ठीक है, एमएससी लगाते वक्त तो हमारा 50 मीटर पूरा स्क्वायर हो गया। तो इससे क्या हो गया, ये 50 का स्क्वायर हो गया और मीटर का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो यूनिट चेंज हो गई, यहाँ मीटर थी यहाँ मीटर स्क्वायर हो गई। ठीक है, ये फर्क हो जाता है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, जब हमारा एमएससी में ये गलती होती है कि यूनिट चेंज हो जाती है। ठीक है, तो मतलब हमें हमें एरर जो है, एरर का हमें वैल्यू चाहिए। ठीक है, हमें एरर की वैल्यू चाहिए, तो उसमें यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, हमने जैसे ही एमएससी लगाया वो स्क्वायर हो गई। ठीक है, वो तो यूनिट भी स्क्वायर हो गई, यूनिट का भी स्क्वायर हो गया। ठीक है, यूनिट का भी स्क्वायर हो गया। तो हमारी ये गलती हो गई यहाँ कि हमने यूनिट का भी स्क्वायर कर दिया। तो फायदा क्या है, मतलब एरर अगर अलग अलग यूनिट में आएगा तो गलती हो जाएगी। हमें उसी यूनिट में चाहिए था जिसमें ओरिजिनली थी। समझिए हमारी ओरिजिनली मीटर में ही थी, 50 मीटर मैंने अभी दिया, बाद में हमने एमएससी लगाया तो 50 मीटर स्क्वायर हो गई या कुछ और आ गया। ठीक है, आंसर फाइनल आंसर मतलब पूरा सबका एरर जो है हमारा कुछ 50 मीटर स्क्वायर आ रहा है, पहले पहले 50 मीटर आ रहा था, तो यूनिट चेंज हो गई मतलब। तो अब मतलब कुछ और आता, समझो 40 मीटर आ रहा था पहले, जब हमने स्क्वायर वायर किया तो कुछ और आंसर आ रहा है। तो आरएमएससी क्या करता है, जो एमएससी की ये जो प्रॉब्लम थी, मतलब एमएससी ये जो गलती कर रहा था, यूनिट चेंज कर दे रहा था स्क्वायर करके, उसे ठीक करता है। ठीक है, उसे कैसे ठीक करता है, स्क्वायर रूट ले लेता है। स्क्वायर, आपको पता होगा स्क्वायर रूट, और जो अंदर आप स्क्वायर करके लिख रहे हो, समझो मैं 5 स्क्वायर कर रही हूँ, तो ये स्क्वायर रूट और ये कट जाता है। ठीक है, तो ये 5 ही आएगा आंसर। ठीक है, स्क्वायर रूट और जो स्क्वायर होता है वो एक दोनों के ऑपोजिट होते हैं, एक दूसरे को काट देते हैं। ठीक है, तो आरएमएससी में क्या हो रहा है, इट ब्रिंग्स एमएससी की पूरी वैल्यू, मतलब एमएससी इंपॉर्टेंट है, एमएससी की हम पूरी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर आखिरी जो वैल्यू होती है, मतलब जो फाइनल आउटपुट होता है, फाइनल जो एरर होता है उस पे स्क्वायर कर देते हैं। तो इससे ये फायदा होता है कि हमारा आंसर आ जाता है सही। ठीक है, एमएससी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें स्क्वायर्ड आंसर आता है हमारा। ठीक है, समझो 40 है, मतलब हमारा 40 का स्क्वायर मतलब 40 आ रहा है हमारा आंसर। ठीक है, एक्चुअल में हमें समझो हमारा आंसर 400 आ रहा है एमएससी से। ठीक है, बट ये यूनिट गलत आ रही है, ये यूनिट मीटर स्क्वायर आ रही है, हमें मीटर में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, तो आरएमएससी करता क्या है, ब्रिंग्स एमएससी बैक टू द सेम यूनिट, बैक टू द सेम यूनिट जिसमें हमारी थी। ठीक है, तो यही फर्क है, आरएमएससी का फॉर्मूला भी एमएससी, आरएमएससी बेसिकली मैंने आपको भी बताया कि स्क्वायर रूट है एमएससी का, बस कुछ नहीं है, एमएससी का स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो मतलब क्या है, एमएससी का फॉर्मूला लिख दो अंदर स्क्वायर रूट के, 1/समेशन, समेशन आई इज इक्वल टू 1 से लेके स्मॉल एन, वाई आई माइनस वाई आई हैट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, इस पूरे का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो आपको समझ में आया आरएमएससी क्यों यूज हुआ, क्यों हमें नीड पड़ी आरएमएससी की। Yes. हाँ, तो आरएमएससी बेसिकली हमारा इसलिए यूज हुआ क्योंकि हम जो एमएससी था वो सब चीजें अच्छी कर रहा था, लेकिन वो बस स्क्वायर कर दे रहा था, जो यूनिट चेंज हो जा रही थी। तो वो यूनिट हमें चेंज नहीं करनी थी एरर की, जो हमें जिस यूनिट में चाहिए, डिजायर्ड यूनिट जो थी वो हमें मिल नहीं पा रही थी, क्योंकि एमएससी जो है स्क्वायर यूज करता है, तो वो स्क्वायर कर देता है तो यूनिट का भी स्क्वायर हो जाता है। ये चीज सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, हमने वो स्क्वायर का अपोजिट लगा दिया, स्क्वायर लगा हुआ था, अब ये स्क्वायर से हमें प्रॉब्लम हो रही है तो हमने स्क्वायर का अपोजिट अंडर रूट लगा दिया। तो क्या होगा, ये दोनों कट जाएंगे आपस में। ठीक है, तो हमारा ये वाला पार्ट बच जाएगा, मतलब फाइनल आंसर में हम जो है, पहले हम पूरा कैलकुलेट करेंगे अंदर का पार्ट। ठीक है, समझो हमारा 400 आया, हमारा एमएससी, फिर इस पे हम आरएमएससी लगाएंगे, क्योंकि ये अच्छा है आंसर, But, हमारा एमएससी काम की चीज है, guys, इस पे हम my आरएमएससी class is लगाएंगे going और on. इससे But अंडर रूट कर देंगे, तो ये हमारा 20 आंसर आ जाएगा। सही है, यूनिट इज करेक्ट। ओके, डिड यू अंडरस्टैंड। Yes, I understood. I understood. ओके, नाउ लेट मी टेल यू कि हम कौन सी क्यू यूज करते हैं वो भी। जो जो हमारा बेसिकली एक दो चीजें और मैं बता दूं। जो हमारा एम ए ई है,
जो मॉड वाला था जिसमें हम मॉड यूज कर रहे थे, वो अच्छा है. इट इज इजी टू एक्सप्लेन एंड इट इज नाइस. ओके, इट इज इजी टू एक्सप्लेन ऑल्सो. ठीक है. जो हमारा MSE है उसमें क्या हो रहा है, इट पनिशेस लार्ज मिस्टेक्स. मतलब मोर, मतलब क्या हो रहा है कि मतलब जैसे आपका कोई एरर है, एक एरर आपका है, आपका जैसे MSC में क्या करते हो आप, एरर ऐड करते हो, उनका स्क्वायर करते हो. एरर समझो ऐसा है, चार, चार का स्क्वायर, और एक एरर है 20 का स्क्वायर. तो ये इसका आंसर कितना आएगा 16, और इसका आंसर कितना आएगा 400. तो आप देख रहे हो अगर आपका एरर बड़ा है तो उसका स्क्वायर और बड़ा हो जाता है. तो MSC में ये है कि जो लार्जर मिस्टेक होती है वो और बड़ी हो जाती है. ठीक है, ये चीज RMSC में होता है, सॉरी MSC में होता है. RMSC में क्या होता है, RMSC किस लिए हम यूज करते हैं, जब हमें सेम यूनिट रखनी होती है, सेम यूनिट रखनी होती है. बिकॉज यहाँ जब हम MSC में स्क्वायर करते हैं तो यूनिट का भी स्क्वायर हो जाता है. मीटर होगी तो मीटर स्क्वायर हो जाएगी RMSC यूज करके. अब ये मीटर स्क्वायर से हमें वापस मीटर में लाना है तो हम क्या करेंगे, हम RMSC यूज करेंगे. ठीक है, डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, I understood. I understood. एनी डाउट्स यू हैव? No, no, no. I understood deeply. वन सेकेंड. It's almost 8 o'clock now. I think we should wind up. My kids are awake. I need to go. Yeah, actually I was finding my charger because my laptop's battery is low. Okay. Yeah, so you wanna wind up? Yeah, I'll try to join at 6 o'clock sharp tomorrow. But it's